So next type of multiplication of vectors. First was scalar product. Next is dot product or sorry, cross product or वेक्टर प्रोडक्ट. एक चीज जो हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, दैट इज द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो आंसर आता था वो हमें स्केलर मिलता था. In this section, we shall define another type of product of two vectors. This is known as vector product. Result of vector product is always a vector quantity. So A cross B अगर होगा तो आंसर C आएगा. C will always be a vector. It will have magnitude as well as direction. Vector quantity. There are some physical quantities which are defined in terms of vector product. In chapter 7, we shall learn. We will define torque of a force. Torque of a force and angular momentum which are defined as vector products. ये पहले दो first दो quantities है, torque of a force and angular momentum. These are vector quantities, result of a vector product. ये हम लोग पढ़ने वाले आगे फर्स्ट बुक के आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर में. To represent scalar product of two vectors, we used a dot in between the vectors, and that is why scalar product is also known as dot product. Similarly, to represent vector product, we shall use a cross like this in between the vectors, and that is why vector product is often called as cross product. If C represents vector product of two vectors A and B, then we can also write it as vector C is equal to cross product of A and B, A cross B. Vector C is vector A cross vector B. So इसका definition क्या है? Vector C, which is the cross product of vector A and vector B, is magnitude of vector A times magnitude of vector B times sine theta. What is theta? Angle between A and B. What is n cap? N cap is the direction of the vector product और क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन है ये n cap. So AB sin theta together is the magnitude of vector product of vector A and vector B, and theta is the angle between the two individual vectors. Unit vector n cap represents the direction of the vector product. If we join both the vectors A and B tail to tail, then we can visualize a unique plane containing both the vectors. So basically कोई भी दो वेक्टर एक प्लेन में होते हैं, दो वेक्टर एक प्लेन में होते हैं, ये दोनों को ज्वाइन करने से उस प्लेन को हम विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है. सो इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टू यू, बट आई विल डू दैट. आई विल टेक माई चांसेस. ठीक है. सपोज ये वेक्टर ए है और टेल टू टेल मैंने रखा है दोनों को वेक्टर बी. तो ये दोनों को ज्वाइन करने से एक प्लेन बनता है जिसमें दोनों वेक्टर है. एक प्लेन जिसमें दोनों वेक्टर है, उस प्लेन को मैं ऐसे दिखाता हूं so that you clearly understand what I'm talking about. This is a plane in which they both are there. Understand it as a tabletop on top of which you keep two pens or pencils. दो पेन या दो पेंसिल को एक टेबल टॉप के ऊपर रख दो. उनके जो पॉइंट्स है ना वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या उनके एंड जो बैक पार्ट है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. अब वो टेबल टॉप क्या है? प्लेन है. और ये दो पेंसिल क्या है? वेक्टर्स है. ठीक है. सो बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट है वो ये प्लेन पे होगा. ये प्लेन से उसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. ये बच्चों के लिए ये वाले. ओके गुड. मेरा वो ग्लास का बॉटल हम उधर रखते वो साइड. ठीक है. सो if we join both the vectors A and B tail to tail, then we can visualize
we can visualize a unique plane containing both the vectors. Direction of cross product is always perpendicular to this plane in which both the individual vectors lie. हाँ, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं उसको. सो लेट्स हैव अ लुक. तो जस्ट इमेजिन, जो लोग ऑनलाइन है स्क्रीन से देख रहे हैं, दे कैन यूज देयर स्क्रीन, एंड जो लोग यहाँ पे फिजिकल क्लासरूम में, दे कैन यूज देयर हैंड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है. ठीक है, तो तुम समझो कि तुम्हारे सामने जो टेबल टॉप है वो प्लेन है और उस पर दोनों वेक्टर रखे हुए हैं. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ढूंढने के लिए first you have to use your right hand, because the direction of a cross b will be given by right hand thumb rule. So you have to use your right hand. Now with your right hand you have to point in the direction of the first vector. हमें ढूंढना है a cross b, so I have to point my fingers of my right hand towards a. ठीक है, तो मैंने मेरे सामने जो है उस हिसाब से उसको लोकेट कर लिया. आप लोग भी करो प्लीज साथ में. ठीक है, मैंने लोकेट कर लिया. नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू कर्ल माय फिंगर्स टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर. दैट इज डिफिकल्ट बिकॉज माय फिंगर्स कर्ल टुवर्ड्स माय राइट साइड. माय राइट हैंड फिंगर्स, sorry, they curl towards my left side and vector b is to my right. So what I have to do, I have to rotate my hand. I have to rotate my hand and then point in the direction of A, and then I can curl my fingers towards vector B. So what we do is we point our fingers of our right hand in the direction of the first vector. We curl our fingers in the direction of the second vector, and then we see the direction of the thumb. The thumb gives us the direction of their cross product, वेक्टर प्रोडक्ट. मतलब इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, बिकॉज दैट ऑल्सो इज अ वेक्टर, उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर बट इनवर्ड्स. perpendicular and inwards to the plane of the paper because of their location. But interestingly, if I find b cross a, if I find b cross a, see what I'm going to get is बी ए साइन थीटा एन कैप. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. ऊपर क्या मिलता है मुझे, ए बी साइन थीटा एन कैप. यहां पे दोनों में फर्क क्या है पता है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, ये एन कैप अलग है. एन कैप इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं. आई हैव टू फाइंड द direction of the cross product of B and A. So I will point my fingers in the direction of B and I will curl my fingers towards A. Now the direction is vertically upwards to the plane containing both the vectors out of the paper. So that means the direction has been reversed by changing the you can say components of the cross product. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को रिवर्स करने से क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है. मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है. डायरेक्शन कैसे ढूंढना समझ में आया. राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको. ठीक है, राइट हैंड स्क्रू, सॉरी स्क्रू रूल भी एक है. मतलब इफ यू, व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू टर्न द स्क्रू from the first vector to the second vector. Now on turning the screw, if screw goes down, then if turning the screw clockwise, of course it goes down. So if screw goes down, then the direction of cross product is downward. But if you turn the screw in opposite direction, anti-clockwise, then the screw comes up. That is B cross A. So that is the direction of cross product is upward. But right hand thumb rule is always useful. So use only one rule, any one rule, which is in which you are comfortable.
ठीक है, सो राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल यहां पे जो मैंने बताया वही लिखा है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ठीक है, दिस फिगर एग्जैक्टली शोज यू हाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी टू वेक्टर्स। दो वेक्टर यहाँ पे दिए हैं, स्क्रू को भूल जाओ, हम लोग कोई भी एक यूज करने वाले हैं, वी आर कंफर्टेबल विद दैट आई अज्यूम, सो लेट्स फोकस देयर। नाउ उसने क्या किया है, राइट हैंड को वेक्टर ए से वेक्टर बी के डायरेक्शन में कर्ल किया है फिंगर्स को, तो थंब ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अपवर्ड है टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, सिंपल। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। When the two vectors are joined on tail to tail basis, then there are two angles between these vectors. If one is represented by theta, then other is 360 minus theta. अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 360 माइनस थीटा है। द एंगल विच इज स्मॉलर, दैट इज स्मॉलर देन 180 डिग्री, इज नोन एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को हम थीटा या 360 माइनस थीटा में से एक चूज करेंगे और प्रेफरेंस उसको देंगे जो 180 से छोटा है। While applying the above specified rules to determine the direction of cross product, rotation should be through smaller angle, not through larger angle. Always remember, जो तुम राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल कर रहे हो ना, that should be curled through the smaller angle. सो थीटा या 360 माइनस थीटा में जो छोटा एंगल है उस डायरेक्शन में तुम्हें कर्ल करना है। दीज आर ऑल द रूल्स, नॉट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन विल कम, देन यू हैव टू थिंक अब क्या कैसे यूज करना है इसको, विल सी दैट। Okay, so some important point that we should know about vector product. It is not commutative. That means A cross B and B cross A are not equal, and the reason being an inequality of the direction. As you change the positions of the constituents of cross product, the direction reverses. You cannot find it. In fact, since the direction becomes exactly opposite, 180 डिग्री से ऑपोजिट हो जाती है डायरेक्शन, और ऐसे वेक्टर्स को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिन दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, वो लोग एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। मतलब ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, just because their directions are opposite to each other, just because they are opposite to each other. स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज फॉलोड बाय वेक्टर प्रोडक्ट एज वेल एज स्केलर प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी पॉसिबल है, यू कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सिमिलरली स्केलर में भी वो पॉसिबल था। If we take cross product of vector with itself, then the cross product becomes zero because the angle between the vector is zero. Means A cross A is A times sin zero. Zero क्यों? क्योंकि एक ही वेक्टर के साथ खुद का ही एंगल तो जीरो ही होगा। साइन जीरो जीरो होता है तो सब कुछ जीरो बन जाता है, विच इज नॉट द केस इन डॉट प्रोडक्ट। इन डॉट प्रोडक्ट इट इज ए स्क्वेयर, A dot A is A square, A cross A is zero. सो जीरो क्या है? जीरो इज अ नल वेक्टर। मैंने वेक्टर की टाइप्स जब बताई थी तब जीरो का मीनिंग बताया था। हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स नॉट फिक्स्ड। आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है नॉट फिक्स्ड, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आर्बिट्रेरी, ठीक है। सो यू शुड नॉट डिफाइन आर्बिट्रेरी। व्हेन यू से आर्बिट्रेरी, इट डिफाइंस इटसेल्फ दैट इट इज नॉट फिक्स्ड। ए डॉट ए स्क्वायर था, हमें ये याद रखना चाहिए। दूसरी एक बात, इफ यू रिमेंबर, आई क्रॉस आई क्या था? वन था। आई क्रॉस आई वन था बिकॉज आई क्रॉस आई, सॉरी आई डॉट आई, आई लेट मी, आई सेड इट रॉन्ग।
आई डॉट आई वन था. आई डॉट आई वन इसलिए था क्योंकि आई and I, between them the angle, that is x direction, the angle is 0 degree and cos 0 is 1. So I cross I was always, in magnitude it's always 1. ठीक है. I dot I, again I'm saying I cross I on the other hand is 0. J cross J is 0. K cross K is 0. So it's exactly opposite to dot product in this case. So लिखा क्या है कि the cross product of orthogonal unit vectors uh, is always 0, itself is equal to 0. Hence we can write the following. Further, we know that angle between any two unit vectors I, j and k is 90 degree. Hence magnitude of cross product of any orthogonal unit vector with any of the other will always be sine 90 or 1. These unit vectors are defined to represent x, y and z for right-handed coordinate system. Hence, when taken in order, then direction of cross product of the two will be along the third unit vector. Okay, so let me just show you one important property of cross product of unit vectors. और इसको याद करने के लिए you should write like this: I, J, K, I, J, K, I, J, K, 3 बार. ठीक है. Always remember, if you do cross product of these two, I cross J, you will get K. I cap cross J cap is equal to K cap. You should not be surprised because I और J से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसके क्रॉस प्रोडक्ट की. हमेशा याद रखो कि कोई भी दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो वो दोनों वेक्टर को कनेक्ट करते हैं टेल टू टेल, और उस प्लेन से परपेंडिकुलर उसके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है. तो I और J कौन से प्लेन में? I is in x direction, J is in y direction. So this is xy plane. xy प्लेन में अगर हमारे दो वेक्टर है और उनके क्रॉस प्रोडक्ट को मैं निकाल रहा हूं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट z प्लेन में होगा, z डायरेक्शन में होगा. z डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर आता है? k. सो i कैप क्रॉस j कैप इज ऑलवेज k कैप. हमने अभी देखा i कैप क्रॉस i कैप वो कितना होता है? 0. This is the second important you can say property of unit vector. Similarly, can you tell me what is j cap cross k cap? I cap. What is k cap cross I cap? Very good. तो ये तो बहुत इजी है, आराम से निकाल सकते हो. But if I change something over here, what is k cap cross j cap? तुम्हें क्या करना है पता है? उल्टा जाना है. k cap क्रॉस j cap क्या मिलेगा तुम्हें? लेकिन since we have reversed the direction, we know that on reversing the product, reversing the order of the constituents of the cross product, the direction of their magnitude also gets reversed. So here if you see j cap cross k cap हमें I cap मिल रहा था, constituents वही है, सिर्फ उनकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी तो यहां पे क्या आएगा? दिस यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, क्योंकि ये काम आएगा तुम्हें जब तुम वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो बेसिकली आई जे के ऐसे 3 बार लिखोगे. सो यू कैन फाइंड एनी consecutive product in any orthogonal direction, but once you know that the direction is reversed, you should remember that the product will be negative or the sign will change. ठीक है. Similarly, I cap cross k cap कितना होगा? माइनस जे कैप. इसके बाद जो आएगा वही प्रोडक्ट होगा, लेकिन सिंस यू आर गोइंग इन नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन, सो आंसर विल बी नेगेटिव, एंड यू कैन confirm here also. So this is one thing you should keep in mind.
ठीक है, अब थियोरेटिकली वो लोग ने क्या बोला है, यू वांट टू राइट इट डाउन, प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट. You will require some skills, that is, while listening to me and while seeing here, you should also take down notes quickly so that कुछ miss ना हो जाए. Although I will share all these things with you, but certain tricks are should be handy so that we can solve easily. Rishi, can you see everything and hear? Yes, sir. Okay, great. Okay, great. ठीक है. So theoretically क्या है इसका meaning? When these orthogonal unit vectors are multiplied in reverse order, then the direction is opposite to the third unit vector. Using the above discussion, we can write the following, जो हमने already समझ लिया. ठीक है. Unit vectors in cyclic order can be written as ijk, ij. You have to multiply two adjacent vectors. If you choose two adjacent unit vectors in same order, then the cross product is equal to the next unit vector in the same order. But if you choose to cross multiply unit vectors in reverse order, then also the cross product is equal to the next unit vector, but with negative sign. Fifth property of cross product. We can now use cross product of orthogonal vectors, unit vectors, to determine the cross product of two vectors which are written in terms of these orthogonal unit vectors. So this is, we have seen this in addition, analytical method of vector addition. So this is analytical method of vector product or cross product. So this is the representation of a vector in its orthogonal components form or rectangular components form as we know it. This is how we write it in its rectangular or orthogonal components. So if you want to find the cross product, basically everything comes into the format of cross product. And this, इसको कैसे solve करना है ये बहुत important है. We can understand that there will be total of 9 terms after we expand the above relation by distributing cross product. मतलब हर एक टर्म ये फर्स्ट ब्रैकेट की हर एक टर्म को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 9 टर्म्स आ जाएगी. Components will be multiplied like ordinary numbers and unit vectors will be multiplied according to the rule of cross product that we have discussed just above. 3 terms will be 0 because these terms involve multiplication of unit vector with itself. That is I cap cross I cap, j cap cross j cap and k cap cross k cap वाले जो terms होंगे, 3 term होंगे, वो 0 बन जाएंगे. So 9 में से 3 term कितने हो गए? 0 हो गए. बचे कितने? 6 term. वो हमें लिखने हैं. ठीक है. अब वो होंगे प्लस और माइनस ऑल्टरनेट. अगर तुम देखोगे तो ऑल्टरनेट या फिर तुम अगर उसको चेंज करोगे उस हिसाब से तुम उसको देख सकते हो. बट अभी हम देखेंगे 3 प्लस होंगे 3 माइनस होंगे. दैट इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो ये एक्सपांशन जो है इसका ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस ए वाई बी एक्स के कैप प्लस ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप. 3 प्लस 3 माइनस. सो दिस इज द होल थिंग रिटन टुगेदर. बट इसको हम लोग सेग्रीगेट भी कर सकते हैं. हाउ? बिकॉज वी टेक ऑल द terms containing I cap together,
j cap together and k cap together. So there will be total of 3 segregated terms as shown over here. So this is, you can say, the components form of vector product. Components form, rectangular or orthogonal components form of vector product. सेग्रीगेट मतलब उसको अलग अलग करके सिमिलर कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को साथ में लाना, सिमिलर चीजों को साथ में करना, सेग्रीगेशन. वी हैव टू डू इट राइट फॉर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे तुम अगर देखते हो तो ये के कैप है, यहां भी के कैप है, फिर ये दो जे कैप वाले हैं और ये आई कैप वाले टर्म्स हैं. उनको साथ में लाना इजी रहेगा ना, तो साथ में लाने से 3 सेग्रीगेटेड टर्म्स मिल जाएगी हमको, विच इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जनरली हमने सब कुछ तो लिख लिया है, ये भी लिख लिया है, सिर्फ एक चीज ये नहीं लिखी है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. प्लीज लिख लो. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और जस्ट ए बी साइन थीटा. इसके नीचे लिख लेना ए बी साइन थीटा, और that's area of a parallelogram where theta is angle between A and B. अभी एक ट्रिक या फिर टेक्निक आ रही है. अभी हमने देखा कि यहाँ पे दो वेक्टर्स का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप्स आते हैं इसमें. 9 टर्म्स होती है, 3 जीरो हो जाएगी, 6 टर्म्स बचेगी, सेग्रीगेट करोगे फिर 3 टर्म्स होगी. इसको तुम सिंपली कर सकते हो यूजिंग टेक्निक विच you are going to learn in class 12th in mathematics, which is known as determinants. Determinants तुमने unknowingly यूज किया है क्लास 9th या 10th में in a chapter called simultaneous linear equations or pair of linear equation in two variable. तुम CBSE ICSE होंगे तो तुमने ICSE वालों ने 9th में पढ़ा है simultaneous, और CBSE वालों ने 10th में पढ़ा है pair of linear equation in two variable. उसमें एक मेथड थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. इफ यू रिमेंबर, वो जो मेथड का फॉर्मूला था ना, वो डिटर्मिनेंट से ही निकला हुआ है, बट डिटर्मिनेंट्स तुम्हें पढ़ाते नहीं है बिकॉज दैट्स वे टू अबाउ योर स्केल एट दैट टाइम. तो अभी उन्होंने वेक्टर प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट का एक छोटा एप्लीकेशन दिखाया है, बट एक्चुअली जो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है वो 12th में पढ़ाता है. सो दिस इज what you call a determinant. This is determinant. So determinant में क्या होता है, दो vertical lines होती है और उसमें rows और columns होती है. It is very similar to your matrix. Matrix भी CBSE वालों ने अभी तक नहीं पढ़ा है. मूवी देखी होगी मैट्रिक्स, सुना होगा. मैट्रिक्स पढ़ा नहीं है और ये लोग सब करके बैठे हैं मैट्रिक्स. So it is very similar to matrix but it's not matrix. The अच्छा, मजे की बात यह है कि 12th में मेट्राइसिस भी है, मतलब ये लोग तब पहली बार पढ़ेंगे मैट्रिक्स 12th में, जो तुमने 10th में पढ़ लिया ऑलरेडी. अब मेट्राइसिस और डिटर्मिनेंट्स ये दोनों टॉपिक साथ में, सो दैट मीन्स दे आर क्लोजली रिलेटेड. दे मे नॉट बी सेम बट दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. ठीक है. सो क्रॉस प्रोडक्ट में हम डिटर्मिनेंट्स का हेल्प लेते हैं. अच्छा, कैसे लेते हैं, तो ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, आई कैप, जे कैप, के कैप. ऊपर क्या लिखना है तुम्हें, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर्स, आई जे के, आई कैप, के कैप, जे कैप. नीचे कंपोनेंट्स, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए, एंड थर्ड रो में लिखना है एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ द सेकेंड वेक्टर विच इज बी, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड. अच्छा, अब करना क्या है, ध्यान से देखना, मैं इसको अलग से लिख के दिखाता हूं, ये थोड़ा सा छोटा है.
लेट मी राइट इट सेपरेटली. सो फर्स्ट मैंने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट बनाओ और लिखो फर्स्ट रो में आई कैप, के कैप, जे कैप, नोट कर लो साथ साथ में. फिर ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड. देखो जो तुमने अभी वो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर देखा, वो आंसर तुम खुद बिल्ड कर सकते हो यूजिंग दिस सिंपल टेक्निक. ठीक है, करना क्या है, इज इक्वल टू, सीधा इज इक्वल टू लिख देना है. ठीक है, अब डोंट डू व्हाट आई एम डूइंग बट कीप इन माइंड, इसको पहले कंसिडर करना है. दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट मतलब आई कैप को कंसिडर करना है, और ये रो को कैंसिल कर देना है और ये कॉलम को भी कैंसिल कर देना है. तो बचेगा क्या, ये चार एलिमेंट्स बचेंगे. ये चार एलिमेंट को तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये दोनों को. लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप. ठीक है, सो मैंने क्या किया, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ब्रैकेट डाल देना है, और फिर वो जो मैंने सर्कल बनाया था ना, वो वाले यूनिट वेक्टर को लिख देना है, आई कैप माइनस, हाँ माइनस क्यू, करेक्ट, आई एम सॉरी. ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उनके जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना. ये फॉर्मूला है ना, हाँ सब में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन और एक चीज है वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें. सब में ऐसे ही लिखना है. ठीक है, यही तरीका है, यही फॉर्मूला है, दैट्स हाउ यू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म. कितनी टर्म देखी थी हमने सेग्रीगेटेड, 3 टर्म देखी थी. एक्चुअली 6 टर्म थी, फिर आई कैप, जे कैप और के कैप को कॉमन लेके 3 टर्म बचती थी. ये पहली टर्म है वो 3 में से. ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मैं एक साइन लिख रहा हूं. क्या लिखा मैंने, यहां पे भी एक साइन आएगी और यहां पे भी एक साइन आएगी, प्लस माइनस प्लस. ये प्लस किसका है पता है, ये प्लस यहां पे आएगा. ये प्लस हम लिखते नहीं है बट मैं बता रहा हूं तुमको. ठीक है, अच्छा अब देखो, ये फर्स्ट चीज हो गई, खत्म हो गई. अब मैं इसको, ये लाइन को, ये लाइन को और ये लाइन को हटाता हूं, ये दोनों को हटा देता हूं. ठीक है, अब देखो ये माइनस लिखा है मैंने यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस, ब्रैकेट डालूंगा. अब मैं किसको सर्कल करूंगा, इसको, और ये वाली रो को और ये वाली कॉलम को हटा दूंगा. कौन से एलिमेंट्स बचे, 1 2 3 4. सेम मुझे क्या करना है, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस, उसके प्रोडक्ट को माइनस करना है, बी एक्स ए जेड से, बी एक्स ए जेड को माइनस करना है. ठीक है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, के कैप, और लास्ट में क्या है, प्लस. पहले इसको हटा देते हैं, प्लस ब्रैकेट, मैं जे कैप को ले रहा हूं, अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और साथ में क्या आ जाएगा, जे कैप. ओह मैंने उल्टा लिखा है, आई एम सॉरी. ये जे होगा और ये के होगा. नहीं नहीं, फर्क पड़ेगा यार, आई जे के, तो जे में माइनस आ जाएगा और के में प्लस आ जाएगा. अच्छा और एक चीज कर सकते हो तुम, अगर इसको प्लस बनाना है ना, तो अंदर की पोजीशन चेंज कर दो. मतलब ये अंदर प्लस बन जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर की पोजीशन चेंज हो जाएगी. मतलब बी एक्स ए जेड पहले आ जाएगा, ए एक्स बी जेड बाद में चला जाएगा. वो नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी छोड़ सकते हो. ये लिखा तुमने क्योंकि इसको हमें अभी कंपेयर करना है कि सही है कि नहीं, बट यही है, रूल है, फॉर्मूला होता है जैसे वैसे रूल. इसको एज इट इज तुम्हें समझ लेना है, बिकॉज दिस इज लाइक अ शॉर्टकट विच यू कैन अप्लाई.
for solving cross product. लिख लिया, चेक करते हैं। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है, माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप, बिल्कुल सही है, और प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, सही है। साइंस सारी देख लो, सही है। So this is basically your short form for remembering how to write component form of two vectors when they are cross product with each other, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये जो तुमने अभी एक फॉर्मूला लिखा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला, वो है। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर एज शोन. The cross product of these vectors can be calculated by joining both the vectors and forming a parallelogram. The magnitude of the cross product of the two vectors will be equal to the area of parallelogram formed. However, the direction of the cross product will be perpendicular to the plane containing both the vectors. So, if you complete the parallelogram, area of parallelogram will represent the magnitude of the cross product, which we just mentioned. But the direction is of course perpendicular to the plane containing that parallelogram. ठीक है, चलो, I think we should try couple of them. We should try before going to the next part, that is motion in a plane के application, projectile, circular motion, अभी वो शुरू कर देंगे, but we should try couple of them. ठीक है, calculate the angle between the two vectors A and B. इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करेंगे एंगल कैलकुलेट करने के लिए? देखो, अगर ए और बी तुम्हें तुम्हें कंपोनेंट फॉर्म में दिए और उनके बीच का एंगल ढूंढना है, तो एंगल दो तरीके से मिल सकता है, डॉट प्रोडक्ट से भी मिल सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी मिल सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ करने की जरूरत नहीं, तुम डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो। सो डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी विच इज ए बी कॉस थीटा. What is AB? Magnitude of A multiplied by magnitude of B, and cos of theta is the angle between A and B. So I think you can try this. पहले इनके magnitude निकाल लो. Don't worry about the cross product here. We are not doing cross product, only the dot product. Okay, try.
तो मैग्नीट्यूड तो -7 आता है इफ यू सॉल्व। किसी को आया -7? नहीं आया? सर मुझे आया। ओके। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, बट आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट है। और आई कैप डॉट के कैप भी 0 होता है। वैसे ही जे कैप डॉट आई कैप 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप भी 0 होता है, बट जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है। सो इसलिए सिर्फ -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू -2 और -3 इंटू 1 -3 बचेगा, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। बट तुम्हें एक बात पता है, कॉस थीटा का भी एक फॉर्मूला हमने देखा था। क्या था वो? ए क्रॉस डॉट बी क्रॉस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस डॉट बी क्रॉस। ऐसा ही था क्या कुछ? चेक करो, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था। ऐसा ही था ये। सो फर्स्ट मैग्नीट्यूड तो -7 है फॉर श्योर। न्यूमरेटर में क्या आएगा? लेट्स सी ओवर हियर। ओके, तो ये लोगों ने ए और बी के मैग्नीट्यूड को अलग अलग से मल्टीप्लाई किया है। That is your separate magnitude of A and B. So how they have written it? Actually, they have used one property, vector A dot vector B, which is -7, and magnitude of vector A dot magnitude of vector B. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, this is one property. Magnitude of dot product of two vectors is equal to magnitude of the individual vectors, magnitude of the dot product of the individual vectors। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज वन प्रॉपर्टी जो वो लोग ने यूज की है। तो ए का आई थिंक तुमने अलग से ढूंढा है, कितना है मैग्नीट्यूड? √14। और बी का कितना है? √6। इसको अगर तुम एक्सपांड करोगे, मैं यहां पे करके दिखाता हूं। -2 आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -2 आई कैप डॉट आई कैप आएगा। -2 इंटू 1 कितना होता है? अच्छा, -2 आई कैप को -2 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -2 आई कैप डॉट -2 जे कैप, क्या आएगा? कैसे? सही है, तो फिर ये उड़ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। -2 आई कैप इंटू के कैप कितना हो जाएगा? 0। प्लस जे कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा? प्लस जे कैप इंटू -2 जे कैप कितना हो जाएगा? आ गया -2। वैसे ही -3 के कैप इंटू आई कैप 0, -3 के कैप इंटू -2 जे कैप 0, -3 के कैप इंटू के कैप, हाँ तो आया -3, आ गया -7। सो दिस इज ए डॉट बी एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब ये है तुम्हारा वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -7 अपॉन, इनको साथ में ले लेते हैं, √84। सही है ना? 84 सिंप्लीफाई करो, 21 4 21 4 होता है 84, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√21 विच इज -7 अपॉन 2 इंटू √7 इंटू √3। ये रूट कट जाएगा इसके साथ, यहाँ पे आएगा √7।
अब तुम इसको रैशनलाइज कर सकते हो इफ यू वांट. सो दिस विल बिकम -√21 अपॉन 2 into 3 6 -√21/6 which is the value of cos theta. So theta is equal to cos inverse of -√21/6. यहाँ पे छोड़ सकते हो. देखते हैं वो लोग ने कहाँ पे छोड़ा है. वी हैड टू फाइंड द एंगल ना. वो लोग ने कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू. नेगेटिव है -0.7637. सो बेसिकली इफ यू फाइंड, हमें भी नेगेटिव वैल्यू ही आई है. If you find the value of √21 divided by 6, you will get the same thing, -0.7637. Have you been taught the use of log tables for finding the value of cos of certain angles? 10th में तुमने किया था. 11th में तुम्हें लॉग टेबल मैंने सिखाया था लॉगरिथम के लिए, बट ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्कूल में बोला है यूज करने के लिए. अगर नहीं बोला है तो इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है. तुम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो. अच्छा, सो दिस इज कॉस थीटा. क्या सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री से? ओके, तो यू कैन यूज इट, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे 140 का मिलेगा तुम्हें आंसर. तो इसको पॉजिटिव लेके फिर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा. Okay, so cos theta is this. So theta is equal to cos inverse of this value. This is called inverse trigonometric function. मतलब अगर तुम्हें एंगल ढूंढना है तो ये नंबर का cos इनवर्स ढूंढना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, यहां पे भी तुम छोड़ सकते हो आंसर. So they have found the angle to be 140 degree approximately. ठीक है, so if you leave your answer up to that cos inverse, it's perfectly fine. हाँ, ये स्टेप्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. चलो नेक्स्ट और एक ट्राई करते हैं. For the two vectors A and B perpendicular to each other, find the value of alpha. Alpha is this coefficient of j cap in vector B. ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, पहले ही बोल दिया है. परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना. A डॉट B कितना होगा? 0. cos 90 है इसके लिए. ठीक है, तो A डॉट B तुम्हें ऑलरेडी पता है 0 है, तो फाइंड करो फिर क्या है वैल्यू ऑफ A डॉट B, फिर उसको 0 से इक्वेट करो, शायद अल्फा मिल जाए. के कैप 0 होगा. यहाँ पे के कैप है ही नहीं तो उसको फिर लेने की जरूरत भी नहीं है. 0 वो 0 ही रहेगा. इक्वेट करना है तो शायद तुम्हें अल्फा की वैल्यू मिल जाए, मतलब एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा अल्फा के टर्म्स में. और डॉट प्रोडक्ट में हमें बहुत अच्छे से पता है कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, बट आई कैप विथ एनी अदर जे कैप और के कैप 0 होता है. सो इजीली हो जाएगा. माइनस नहीं, 2 है. 2 आया. के कैप है ही नहीं वो साइड.
ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये ट्राई करते हैं. A body constrained to move along y-axis of coordinate system. मतलब बॉडी का मोशन कौन से एक्सिस के अलोंग हो रहा है? वाई एक्सिस, मतलब जे कैप. जे कैप की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर पाएगा, बाकी कोई डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा. इट इज कंस्ट्रेन्ड. It is subjected to a constant force given by minus I cap plus 6 J cap plus 2 K cap. मतलब फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स I cap और K cap के डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, I cap, J cap और K cap. लेकिन मोशन ऑफ द बॉडी by the application of this force is happening only along the direction of J cap. Calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 meter along the y-axis. Work done ढूंढना है. Can you tell me what is the formula for work done? Force into displacement. So force is a vector. What about displacement? It is vector, right? Is it dot product or cross product? सीखा है, सब याद है, शायद स्कूल में सीखा है तुमने. Dot product. It is a dot product. So work done is a scalar quantity because it's a dot product of force and displacement. So work done is also written as Fs cos theta, जो हमने 9th में ही पढ़ा है. F into S cos theta, right? Remember 9th? Work and energy. तुम लोग को 10th में था, CBSE को 9th में था वर्क एंड एनर्जी. तुमको 10th में सेकेंड चैप्टर में. सो इसलिए cos थीटा बिकॉज वो डॉट प्रोडक्ट है. ये अब हमें समझ में आ रहा है वेक्टर पढ़ने के बाद. ठीक है. सो हाँ, अब करना क्या है? ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हमें लेना है 4 J कैप. क्या लेना है? और F तो दिया ही है हमें. क्या दिया है? माइनस I कैप प्लस 6 J कैप plus 2 K cap, and you have to find the work done, that is the dot product of these two. थीटा क्या? एक मिनट, हमें क्या ढूंढना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर along the y axis. If you are finding the dot product, you are you concerned with the forces in x and y direction, x and z direction? No, because only the force, only that component of force will be doing the work which is along the displacement. बाकी तो दो x और z डायरेक्शन में, x और z डायरेक्शन में जो फोर्स है वो y डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाते हैं? 90. तो 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? तो मतलब वो दोनों कंपोनेंट, ये जो दो कंपोनेंट है आई कैप और के कैप, वो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है. अकेला काम कौन कर रहा है? तो डायरेक्टली तुम ढूंढ सकते हो, ये तुम्हारा फोर्स है और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है. 6 4 जा जे कैप इंटू जे कैप 24 जूल्स यूनिट्स. मतलब यहाँ पे क्योंकि न्यूटन, हाँ न्यूटन बोला है ना यहाँ पे, और 4 मीटर, हाँ तो जूल्स, 24 जूल्स. समझा? देखते हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं. करेक्ट है. इजी था. दिखता है डिफिकल्ट बट नहीं है इतना. हाँ, तुम्हें ये सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, ये सब 9th का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे काम आ जाएगा. ऑफ कोर्स उसको कंसिडर ही नहीं करना है, इसलिए तो वो लोग ने बाकी सब जीरो कर दिया है. यस. सो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है उनका एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. तो मैं जे कैप और आई कैप और जे कैप और के कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, या आई कैप और जे कैप और आई कैप और के कैप का, वो सीधा जीरो लूंगा. मुझे सिर्फ सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स का ही काम है क्योंकि उनका ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है. बाकी सबको इग्नोर कर दूंगा मैं. इसलिए मैंने सबको इग्नोर करके सिर्फ यहाँ पे मैंने बोला कि
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बस, बाकी सब को छोड़ दो। वो तो नॉलेज मैंने बोला है ना, तो मैं यही पूछा तुमको कि वर्क डन क्या है, व्हाट इज वर्क डन फॉर्मूला, तो तुमने बोला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने पूछा तुम्हें डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बिकॉज यू आई थिंक यू डिड इन दिस ऑनलाइन क्लासेस, तो यू रिमेंबर दैट इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, यू हैव टू मेमोराइज के रिमेंबर दैट नाइन्थ में इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था या टेंथ में, तो एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा है मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे और इतने ज्यादा क्वांटिटीज तुमने अभी तक पढ़े नहीं है। Scalar quantity, and force and displacement is vector, so it must be a dot product, scalar product, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चंस है, this will be shared with you, please solve it, otherwise you will not get the confidence। I'll go to the next part। ये सब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही है। So there are 16 solved examples, out of which we did 4, and this practice problems 2। ठीक है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स भी दिए हुए, ये दिस यू हैव टू ट्राई। ओके, वी हैव टाइम टू बिगिन दिस पार्ट एट लीस्ट। ठीक है, सो वेक्टर कंप्लीट, वेक्टर का एप्लीकेशन अब शुरू होता है। वेक्टर हमने पूरा समझ लिया, कैसे वेक्टर को हैंडल करना है, वेक्टर एल्जेब्रा पूरा, कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, when a particle moves on a plane and its path is not straight, then we need at least 2 coordinate axes to describe its motion, and such type of motion is called two-dimensional motion। अभी तक हमने जब भी मोशन पढ़ा है, इससे पहले वाला चैप्टर का नाम ही था मोशन इन वन डायमेंशन। दिस इज द फर्स्ट टाइम, बिकॉज नाउ यू हैव नॉलेज ऑफ वेक्टर, you are ready to start with the vector in 2 dimensions। that is, motion is not happening only along a straight line। तुमने जो 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, तुम लोग ने भी वो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। इफ यू रिमेंबर, मोशन, तुम्हारा नाम था मोशन चैप्टर का, बट इनका चैप्टर का नाम भी था मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मोशन होगा 2 डायमेंशन में। दैट डज नॉट मीन इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, बट देयर कैन बी 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन का सिंपल मीनिंग ये है कि in one dimension we used to take examples of a car moving on a straight path, that is x direction, y direction, that's it, or z direction, depends, or ball thrown upward or falling downward, freely falling body, simple चीजों से हम concerned थे। लेकिन if I have a ball and if I throw it to you, then it is something else। so how I am throwing to you, how it is reaching you, if you analyze, then you understand that the motion is not happening in straight line or in one dimension, it is happening in 2 dimension। how? See, suppose if I throw a ball, just imagine the path of the ball will be curved, it will go up, ahead, and then down and ahead। you see, 2 things, I'm using 2 adjectives for describing the motion, up and ahead। ऊपर भी जा रहा है बॉल, आगे भी जा रहा है, फिर एक हाइट पे पहुंच के आगे भी जा रहा है और नीचे भी गिर रहा है, 2 चीजें एक साथ हो रही है, इसलिए मोशन इन 2 डायमेंशन। यू कैनॉट हैंडल सच प्रॉब्लम्स विथ द नॉलेज ऑफ स्केलर्स ओनली, विच वी हैड टिल नाउ। अब हमारे पास वेक्टर्स का भी नॉलेज है, सो वी कैन हैंडल दीज सिचुएशंस विच आर द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल। इससे पहले जो सिचुएशन हम मोशन में पढ़ते थे फिजिक्स में, वो कॉमन नहीं थी, वो रेयर सिचुएशंस थी कि मोशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो रहा है। अब ये कॉमन सिचुएशन है जो जनरली तुम तुम्हारे डे टू डे लाइफ में नोटिस करते हो, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन।
उसके बाद मोशन इन स्पेस भी आएगा, बट दैट इज अगेन अनकॉमन बिकॉज दैट हैपेंस इन स्पेस रियलिटी। स्पेस में जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट ड्रिफ्ट होता है तो वो तीनों डिमेंशन में मोशन करता है, वो ऊपर भी जाता है, आगे भी जाता है और लेफ्ट साइड में भी जाता है एक साथ। that is drifting of a spacecraft in space. That is motion in 3 dimension. You cannot even think about it, handling it right now, although you can with knowledge of 3 dimensional vectors, vector algebra. But right now you should get your grips on motion in 2 dimension. ठीक है? और ये जो मैंने तुम्हें बताया कि if I throw a ball to you, it will travel in 2 dimension, इस पर्टिकुलर मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमें पढ़ना है उसका मैथमेटिक्स पढ़ना है बेसिकली। प्रोजेक्टाइल मोशन समझने में, डिस्कस करने में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे उसका मैथमेटिक्स आता है, द डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट्स। दैट इज द मोस्ट, यू कैन से मोस्ट बोरिंग पार्ट, बट उसको हमें थोड़ा सा याद कर लेना है, कुछ फॉर्मूले, कुछ डेरिवेशंस, देन वी कैन हैंडल इट इजीली बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स इन द एंड। सो ये जो मोशन इन अ प्लेन है उसको समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा हमें। इसमें फर्स्ट पैरामीटर है पोजीशन वेक्टर। अब मैंने पोजीशन वेक्टर को उसी दिन आई थिंक मेंशन किया था, एक प्रॉब्लम में हम अटक गए थे और उसमें पोजीशन वेक्टर का यूज था जो हमें समझ में नहीं आया। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा क्या है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस। उस दिन भी मैंने बोला था कि एक स्पेस है, उसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट की पोजीशन दिखाता है पोजीशन वेक्टर। इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट इन द स्पेस। If position of coordinates of point P are known to be x, y, then the position vector for that point can be written as r, which is the symbol of position vector, r is equal to xi cap plus yj cap. Xi cap plus yj cap. What is x? X is the x coordinate of point P. What do you mean by x coordinate? X coordinate is distance from the y axis. ठीक है, y एक्सिस से वो कितना दूर है। जब y एक्सिस से उसका डिस्टेंस निकालते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में हम सोचते हैं? x डायरेक्शन में। इफ अ पॉइंट इज so and so away from y axis, then which direction are you measuring it in? X direction. So if you are measuring in x direction, there must be an I cap. So x I cap makes sense. Plus, why plus? Because x I cap is not sufficient to define the position of point P. It is also certain units away from x-axis, and the distance of a point from x-axis is y coordinate, that is y. But in which direction do we find the distance of a point from x-axis? In which direction do we find the distance of a point from x-axis? In y direction. So in y direction, if we are finding the distance, we will use a unit vector j cap. So y j cap, x I cap plus y j cap, and your position vector is complete. This is all you need to define a position vector, that is to define position of a point in a plane or a space. Yeah, if it is a space, then there must be a third dimension, that is z dimension. If there is a z dimension, then x I cap plus y j cap plus z k cap उसमें add हो जाएगा और कुछ change नहीं होगा, and that is a position vector in space. ठीक है? Displacement vector. So this is second parameter which you must be aware about when you discuss motion in 2 dimension. Displacement vector. So what is displacement vector? It is a vector that gives information of a change in position vector for a particle in motion during an interval of time. एक certain interval of time में एक moving body का जो change in position है वो describe कौन करता है? Displacement vector. अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो हाउ वी डिस्क्राइब इट्स पोजीशन? विथ पोजीशन वेक्टर. अगर वो बॉडी मूविंग है तो हाउ वी डिस्क्राइब इट्स मोशन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. So displacement vector is used to describe motion of a particle in a plane or a space. Position vector is used to define the position of a body at rest in a plane or space. Don't get confused. मैं सारी टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ, but you should not get confused. You should get familiar with it, friendly with it. Otherwise
क्योंकि टेक्स्ट बुक वही लैंग्वेज में तुम्हारे साथ कॉन्स्टेंटली बात करेगा, आंसर भी तुम्हें वही लैंग्वेज में लिखना है, क्वेश्चन भी वही लैंग्वेज में समझना है, ठीक है। इसलिए गेट फेमिलियर विद दिस. The one way of doing it is listening to me. Second way is reading the textbook. That's why I told you that day also get RL, SL Aurora and read it. सिर्फ just for the sake of revision of what we have done. जो भी हमने किया घर पे जाके एक बार देख लो, रीडिंग कर लो, and then start solving the examples. That will help you a lot. फिर तुम्हें पता चल जाएगा किसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो तुम सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ 9th का वो कॉन्सेप्ट याद रखो। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पोजीशन से और एक चीज निकलती है, पोजीशन वेक्टर। हम क्योंकि 2 डायमेंशनल वेक्टर एल्जेब्रा कर रहे हैं, तो 2 पोजीशंस हमको नोन होनी चाहिए फॉर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Which are these 2 positions? Initial position and final position. So basically, we should be familiar with 2 vectors, initial position vector and final position vector. और ये दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, यहां पे इफ यू सी दिस फिगर, तुम्हें पॉइंट ए दिख रहा है? If I tell you that point A is the position, initial position, so what makes R1 then? Initial position vector. R1 क्या बन जाता है? ठीक है, R1 का कोई मुझे वेक्टर फॉर्म बता सकता है? x1 y1 है उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट A के। R1 का वेक्टर फॉर्म बता सकते हो? जे कैप, परफेक्ट, यही है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, हो गया। B is the point of final position. B is the point of final position. तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा? वेक्टर R2। वेक्टर R2 कौन सा होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 का कोई वैल्यू बता सकता है मेरे को? y2 j कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। मैंने यही तुम्हें बोला था इनिशियली भी, क्लास 9th याद करो, मोशन में डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी वही करना है तुम्हें, वही सेम डेफिनेशन यहां भी अप्लाई करनी है, लेकिन यहां पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल सब्ट्रैक्ट 2 पोजीशन वेक्टर्स, final position vector minus initial position vector, that is R2 minus R1, that is x2 i cap plus y2 j cap minus x1 i cap plus y1 j cap, that is x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap. What is that? That is the displacement vector. समझ में आया displacement vector? When we are talking in vector language, things tend to become complicated while saying and writing, but it is not different than what we have studied earlier. So that displacement vector is denoted here by delta R. Delta R. Delta, always remember, is the symbol of difference. Delta is the symbol of difference. ठीक है? तुम्हें याद है स्लोप का डेफिनेशन डेल्टा के फॉर्म में क्या? एग्जैक्टली, स्लोप इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ट्राइंगल वाई बाय ट्राइंगल एक्स, याद है? और फिर तुम्हें याद है फोर्स का लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स का डेफिनेशन देता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखते थे? डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या होता था? डेल्टा एम वी, जिसमें एम तो चेंज नहीं होता था, तो एम डेल्टा वी लिखते थे। तो एम डेल्टा वी में क्या लिखते थे हम लोग? वी माइनस यू बाई टी, which is A, M into A, force. Are you understanding which language you are talking in? It's all 9th class, basically. You should be up to date with that. Then this is easy. So delta मतलब difference, और यहाँ पे delta R है मतलब difference in position मतलब displacement. तो delta R का formula क्या हो गया? R2 minus R1,
वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, पोजिशन वेक्टर R2 माइनस पोजिशन वेक्टर R1, या फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर। एग्जैक्टली किया हुआ है, देखो कुछ नहीं है, तो मिल गया हमको पहले ही, सब डिस्कस कर लिया हमने, यही आया ना जो किया है वो लोग ने पोजीशन वेक्टर ढूंढने के लिए, यही चीज की। ठीक है, समझ गए ये? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कौन सी दो चीज पढ़ी हमने? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक चीज नई है यहां पे, हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ वेक्टर फॉर्म निकाला है पोजीशन वेक्टर का, आई एम सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, हमने मैग्नीट्यूड भी ढूंढना पड़ेगा। वी कैन नॉट जस्ट फाइंड द वेक्टर एंड लीव इट, वी शुड बी वेरी मच you can say on the spot, the information should be given that vector is split into two parts, that is magnitude and direction. डिस्प्लेसमेंट तो तुमने बता दिया वेक्टर फॉर्म में, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? सो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए यू शुड रिमेंबर दिस। व्हाई इज इट रिटन लाइक दिस? डू यू अंडरस्टैंड? because x and y are rectangular components of the difference of position vector or the displacement vector, और rectangular components का जो magnitude होता है that is under root of sum of the squares of the each individual rectangular component. तो यहां पे x और y नहीं है, x2 minus x1 और y2 minus y1 है, which denotes the displacement in x and y direction respectively. So x2 minus x1 displacement in x direction the whole square plus y2 minus y1 displacement in y direction. क्यों? क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहे हैं, इसलिए तो 2D वेक्टर एल्जेब्रा है ये, या वेक्टर ज्योमेट्री। ठीक है, और इसका अंडर रूट ले लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये डेल्टा आर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया है। क्यों नहीं किया है पता है? बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि थीटा कैसे ढूंढते हैं। अभी हमने देखा कि अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो कैसे निकालना है थीटा, ये सारी चीजें हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। बट सिंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, दे हैव गिवन यू द फॉर्मूला। I will give you this, you can note it down that. Please make sure that you have written notes. मैंने उस दिन बोला था कि इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आई फील दैट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब पूरा, ये कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका ये डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ये डायग्राम, ये डेरिवेशन और ये मैग्नीट्यूड। I think it will hardly take half a page and you will be done with it. So when you revise, you know that what is displacement vector in your handwriting. So once you go home, this work should be done by you. Okay, slowly I'm going to start checking what you guys are doing. But I trust you. You're all my old students and कोई ऐसा stranger नहीं है यहाँ पे, तो सब मुझे जानते हैं, मुझे trust पे काम करना है। ठीक है, चेक वेक नहीं करना है मुझे, तो make sure that you do that properly. Another parameter of two-dimensional vector algebra, velocity. Now, as I told you, one simple example, if I throw a ball at you, that ball will reach to you in a curved path. That means it will travel upward and ahead together simultaneously. That means at one instance of time, it will have two velocities, upward velocity and हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी एक साथ होगी उस बॉल के पास जब मैं उसको तुम्हारी तरफ फेंकूंगा। तो जनरली हमें यही सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड दिखते हैं जिसके पास दो दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो दो पैरामीटर्स होते हैं। तो वेलोसिटी भी एक ऐसा पैरामीटर जिसको टू डायमेंशन में समझना जरूरी है। वही चीज की है यहाँ पे, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने डिस्प्लेसमेंट समझा अभी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम समझना कोई बड़ी बात नहीं। सो velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time. Average velocity in time interval is defined as total displacement divided by total time in which the displacement has taken place. सब कुछ हमें पता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो v average is equal to delta r upon delta t. delta r को देखो कैसे लिखा है वो लोग,
डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। कोई प्रॉब्लम है उसमें रुद्र? You tend to mix two concepts na by seeing these signs. So physics is a bad news for all of us because physics is so complicated in this manner that some symbols are used in different topics. जैसे ओमेगा, omega is such a symbol that it is used in 3-4 different areas of physics. Omega is used in angular velocity, that is your mechanics. It is used in light, which is in part of 12th standard. It is used in waves, which is part of light. It is used separately in heat. It is used in electricity, magnetism separately. तो ये बहुत confusing हो जाता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर कि यहां पे डेल्टा जब बोला है तो दैट इज डिफरेंस. डेल्टा मतलब, तो डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है? x2 माइनस x1. ठीक है. डेल्टा वाई, y2 माइनस y1, चेंज इन y डिमेंशन. ठीक है. अच्छा, इसको दोनों को सेपरेट करके लिखा है सेकंड में, देखो यहां पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी आई कैप. डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है क्या? change in x coordinate upon change in time. So total displacement in x direction upon total time, that is average velocity in x direction I cap. तुम्हें दिख रहा है? इसको पूरा इसको अलग कर दिया है वो लोग ने. सो एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जे कैप. दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन 2-dimensional वेक्टर एल्जेब्रा. कौन सा? ये वाला स्टेप. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ. अपॉन, हाँ, अपॉन चेंज इन टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजिशन. टोटल टाइम इज चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी. तो उसको एवरेज वेलोसिटी नहीं बोल सकते, बट बिकॉज दैट इज हैपनिंग इन एक्स डायरेक्शन, इसलिए यहां पे लिखा है वी एवरेज एक्स, एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और साथ में आई कैप भी डाल दी है. समझ में आया? हाँ, साथ में लिखा है ना, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वी आर स्टडिंग मोशन इन अ प्लेन. तो 2 डायमेंशन तो मिनिमम है. 3 भी हो सकते हैं लेकिन 2 तो मिनिमम है. ठीक है. यहां पे अगर वी एवरेज जेड के कैप होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट इज वेक्टर्स. So from the definition, average velocity is equal to delta r by delta t, we can easily understand the direction of average velocity in a time interval is same as that of the displacement vector. जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जैसे ही वर्ड इंस्टेंटेनियस आता है, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस. आर यू ऑल स्टिल रिमेंबर दैट पार्ट? सो हम लोग क्या लेते हैं? कैलकुलस या फिर इंस्टेंटेनियस, दैट इज रेट ऑफ चेंज एट अ मोमेंट, ढूंढने के लिए हम लोग टाइम को छोटा कर देते हैं. इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब जो तुम्हारा डेल्टा टी है दैट टेंड्स टू जीरो. मतलब टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि वी आर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेलोसिटी एट दैट मोमेंट. एंड एट दैट मोमेंट डाला मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डाला, मतलब डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करके डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं. यहां पे एक चीज को स्प्लिट किया जा सकता है डी आर बाई डी टी में. कैन यू टेल? डी आर बाई डी टी में क्या स्प्लिट कर सकता है? आर. आर क्या है? डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. व्हाट इज आर? पोजिशन वेक्टर. आर इज पोजिशन वेक्टर. सो ये जो पोजिशन वेक्टर है, इफ यू सी, इट हैज बीन स्प्लिट इनटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन डी टी. सो डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमने लिखा है डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप. सो बेसिकली हमने जो वेलोसिटी है उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग डिफरेंशिएट किया है. ऐसा तुम्हें रियली हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ एवरीथिंग विच वी हैव अप्लाइड in motion in 1 dimension can also be applied in motion in 2 dimension.
everything, all the parameters used there we can again use over here, but we have to split every time in two directions, two dimensions, so that we get a vector form. अब dx by dt क्या होता है इधर? Rate of change of position with respect to time is velocity, but in x direction. So vx I cap हो जाएगा ये. Or dy by dt, rate of change of y, that is this distance covered in y direction with respect to time, that is vy j cap. Yes, कोई फर्क नहीं है. कहाँ पे दिया है? हाँ. सी देखो क्या होता है कि दिस इज वेलोसिटी एट एन इंस्टेंस. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी हम नहीं निकाल सकते. एवरेज वेलोसिटी इज फॉर द होल मोशन, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम होता है. इसलिए यहाँ पे एवरेज का कोई मतलब ही नहीं बनता है. सो हाँ, इंस्टेंटेनियस हो जाता है, इंस्टेंट छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वेलोसिटी ढूंढते हैं. और जनरली ये पॉसिबल नहीं है किसी भी मोशन में. उस टाइम पे क्या वेलोसिटी था वो सिर्फ तुम्हें कौन बताता है? स्पीडोमीटर. बट अगर वो मोशन तुम सिर्फ you are just given some theoretical, you can say, information about that motion, you can find it only using calculus. So vx and vy are two components of the velocity, instantaneous velocity. So we can express the position coordinates as function of time, then we can differentiate them to get the corresponding components of instantaneous velocity. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं खुद बताऊंगा तुम्हें. ओके, इंपॉर्टेंट यहां पे आया है. After what we did over here, we found the value of vx and vy. What next? We can find the magnitude of instantaneous velocity. And as vx and vy, what is vx and vy? X component and y component of the velocity. That is rectangular components of velocity. We can easily find the magnitude under root of vx square plus vy square. ठीक है? That is the magnitude of the total velocity. What is the direction of velocity? Because it's a vector. So tan theta vx upon vy is the direction. Theta is tan inverse of vy upon vx. Vy upon vx. Perpendicular. ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए थीटा का फॉर्मूला है. हमने वो फॉर्मूला भी देखा है जिसकी तुम बात कर रहे हो. ये हमने देखा है जब हम वेक्टर एडिशन कर रहे थे. हाँ, जब हम रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढ रहे थे पैरेललोग्राम लॉ से, जहां पे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट था, तो उसमें वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, विच आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट आई कैन go back and we can revise that. Please, please, please remind me. What I remember is, if we have to find the magnitude of velocity when the two components of velocity are making an angle theta with each other, and theta is not equal to 90 or acute angle, then v is equal to under root of v. अगर मैं दोनों कंपोनेंट को a और b के टर्म्स में लिखता हूँ, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va vb cos theta. This I remember. You remember this? थोड़ा तो याद है मुझे. So this is the actual formula where va and vb are two components or two you can say velocity vectors. This is the resultant velocity, magnitude of resultant velocity, but I don't remember the value of this. tan theta का वैल्यू है ये.
थीटा का फॉर्मूला है या tan थीटा का? tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा, मतलब b sin थीटा आर यू श्योर? आर यू श्योर ये tan थीटा ही है? करेक्ट है. So theta is the angle between two vectors VA and VB, और VA और VB का मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, एंड थीटा will be tan inverse of the whole thing, which I have written here. This is the case where theta is not equal to 90, but this is the case of rectangular components where angle between two rectangular components always has to be 90. We will always mostly in motion in a plane part always deal with rectangular components. After the introduction of rectangular components, we have not looked back into our old methods of theta which is less than 90. We always resolve two vectors into their rectangular components and then उसको डील करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी, but we find it in terms of rectangular components because it's very easy to deal with them that way. जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स भी आज भी ट्राई किए वो सब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेस्ड थे. ठीक है, सो हम उस पर फोकस करेंगे. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. 2D वेक्टर एल्जेब्रा में क्या हो जाएगा? v ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, सो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is in x direction is average acceleration in x direction, इसलिए यहां पे a average लिखा है, a average y direction. So this is the formula for average acceleration. उसके बाद instantaneous acceleration, same thing, we take limit such that t becomes t approaches 0 and we take delta v by delta t. We write it as dv by dt, and on substituting the value of v we get vx I cap plus vy j cap. In the place of v, split it and we get ax I cap plus ay j cap, where ax is dvx by dt and ay is dvy by dt. ठीक है, if we know the components of velocity as function of time, then on differentiating them we can calculate the corresponding components of acceleration. The direction of acceleration is along the direction of change in velocity. In mechanics we shall learn that acceleration vector is force vector divided by mass, and from this equation we can understand that direction of acceleration is along the direction of net force acting on that particle. हमेशा किसी भी सिचुएशन में तुम्हें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ढूंढना है तो यू डोंट बॉदर विद द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यू फाइंड आउट और थिंक कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी, सॉरी, एक्सेलरेशन भी होगा. ओके, सो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, so we have understood a lot of new things today, and I think आगे as you can see things get very much dirty. ठीक है, we are ready for it, ऐसा कुछ है नहीं, but we need breaks also in between, क्योंकि अगर ये आगे जाता गया फिर ये बाउंस होता जाएगा. I don't want that, you don't want that. So अच्छा हो रहा है, गुड, वेरी नाइस. सो सैटरडे हम लोग okay, I'll stop the recording first so that no controversial things come on record on YouTube.